بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے طلبا کے درمیان آ کے ان کی حوصلہ افزائی وہ کرے جو بہت کامیاب ہو، اور یا یہ کہ بھائی انعام اس کو مل رہا ہے کہ جس نے بہت نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے جو بہت ذہین نہیں ہوتے ہیں وہ اول نمبر لے آتے ہیں، اور جو بہت ذہین ہوتے ہیں ان کا یا تو کوئی نمبر نہیں آتا ہے، بہت نیچے رہ جاتے ہیں. تو انعام جو ہے وہ تو آپ کی ظاہری صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ جو عام طور سے ہمارے یہاں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد کے ساتھ. تو آج جو یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جو کالجز میں جا رہے ہیں، وہاں جو صورتحال ہے مذہب کو لے کر، وجود خدا کو لے کر، ائمہ علیہ السلام کو لے کر، یہ جو کلاسز ہیں جیسے شہر میں جنہوں ہم ہو رہے تھے، نجمی کلاسز ہو رہے تھے، ادارے مقصد حسینی میں ہو رہے تھے، جہاں بھی کلاسز ہو رہے تھے، یہ کلاسز ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اگر آپ پابندی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ان کلاسز میں حصہ لیتے رہیں. تو لہٰذا انعام آپ کا وہ ہے جو آپ نے سیکھا ہے، انعام آپ کا وہ ہے جو آپ نے یہاں سے تربیت حاصل کی ہے. یہ انعام کوئی انعام نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اراکین کی طرف سے مولانا عادل فراز صاحب ہیں، اور دیکھتے رہیں تو آپ کو پورا علم ہو جائے گا آپ کی فکر کے بارے میں، آپ کی سیاسی فکر اور سیاسی بصیرت کے بارے میں. آپ پوچھا ہیں اور امت کو بیدار کرنے کے لیے آپ برابر دکھ رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. مولانا کی سلامتی کے لیے سب مل کر ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. دیتا ہوں میری مراد ہے جناب مولانا تفسیر صاحب قبلہ سے کروائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. جب تک انشاءاللہ یہ بچے تیار ہو رہے ہیں تقریر پیش کریں گے جناب مولانا تفسیر حسین صاحب قبلہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلم بابها. حضرات، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا دروازہ ہوں. علم بہت ضروری ہے، ہر انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے. مولانا متقیان حضرت علی بن طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے وہ بچہ یتیم ہوتا ہے. علم ضروری ہے، علم کے ذریعے سے ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور جب علم ہوگا تو ہمیں معرفت اہل بیت بھی سمجھ میں آئے گی. علم ہوگا تو ہمیں اسلام بھی صحیح سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو رمضان میں کلاسز شروع ہوئے ادارہ مقصد حسینی کی طرف سے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ سب کو علم کی دولت سے مالامال کیا جائے، اور جو طالبہ و طالبات نے ایگزام میں شرکت کی ہے تاکہ ان کا حوصلہ افزائی کیا جائے. اور یہ جو انعامات کا سلسلہ رہتا ہے تو اس لیے رہتا ہے کہ تاکہ ان سب میں ذوق و شوق رہے. اور جو آپ نے رمضان میں جو کلاسز میں درس میں شرکت کی ہے، آپ کو ان چیزوں کو ذہن نشین میں کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہمیں کیا ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے کہ اتنے دروس میں ہم نے شامل ہوئے ہیں اور ہمیں یعنی احکام کے بارے میں، قرات کے بارے میں، تجوید کے بارے میں، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کو صحیح طریقے سے کریں اور کوشش کریں کہ احکام کا علم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور زیادہ تر ہم کوشش کریں کہ ہمارے عقائد محکم ہونا چاہیے. ہم اسی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں ادارہ مقصد حسینی کا اور
जनाब रजा फैज साहब का, उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के दरमियान में बोलने का, और सब इस्तेज़ाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सजी कराची की तरफ से सैयदुल इस्लाम और मुस्लिम मौलाना तफसीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना की सलामती के लिए सब लोग एक बार सलवात भेजें। देखिए हज़रात, अब जो प्ले पेश किया जा रहा है उसका उन्वान है वजूद खुदा, जो कि नहायत ही ज़रूरी और अहम मौजू है, जिस पर लोगों को सर्च करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। ये एक ऐसा मौजू है क्योंकि आप खुदा को मानते हैं तो वजूद खुदा की तालीम हमें ज़रूर हासिल करनी चाहिए, और उसको इंशाअल्लाह आपके दरमियान पेश करेंगी चंद बच्चियाँ, चंद बहनें। उन सब के इस्तकबाल के लिए एक बदल करें सलावत पढ़िए। आप लोगों को कॉपी निकालेंगे। मैम, आप एक बात पूछ सकते हैं? आप हमेशा स्कूल को इतना ज़्यादा क्यों चाहती हैं? हम लोग भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, टाइम पे वक्त पे अपना काम पूरा करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, लेकिन आप स्कूल को ज़्यादा क्यों चाहती हैं? हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों चाहती हैं आप स्कूल को ज़्यादा? मैम, लगता तो हम लोगों को भी यही है, क्योंकि सुम्बुल आप सबसे ज़्यादा मेहनती, तेज और समझदार बच्ची है, इसलिए मैं उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोग को एक टेस्ट ले सकती हूँ। तो ठीक है, फिर आप लोग के लिए आप लोग तैयार होकर आइएगा, कल मैं आप लोग को एक टेस्ट लूँगी। इनको देखिए कि जल्दी आके बैठ के टेस्ट है, तो लेकिन हम तो पूरी तैयारी करके आए हैं। हाँ, हम भी अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं, कोई आ ही नहीं पाएंगे पर अभी तो फर्स्ट हम ही आएंगे, देखिए। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग अपनी पूरी तैयारी करके आए होंगे इंशाल्लाह। तो टेस्ट स्टार्ट करें। ये ना क्या लेके आएंगे? पता नहीं मैम क्या दे रही हैं। ये पता नहीं मैम उनको क्या दिया है ना, है लेकिन पता नहीं इसका क्या करना है। हाँ, तो आप लोगों को इस चिड़िया को ऐसी जगह जिंदा करना है जहाँ कोई देखने वाला मौजूद ना हो, ठीक है?
बात पे अमल नहीं किया। हाँ ऐसे ही है। हाँ तो इकरा आपने इसको कहाँ से पा लिया? मैम हमने इसको टेरेस पे दिखा किया, वहाँ पे कोई भी हमें नहीं देख रहा था, सिर्फ हम अकेले थे वहाँ पे और हमने इसको वहाँ दिखा किया तो कोई नहीं देख रहा। हमने इसको क्लास घर में सिवा करा, वहाँ भी कोई देखने वाला मौजूद नहीं। मैम मैंने इसको स्टाफ रूम में सिवा करा, जब कोई देखने वाला नहीं था। मैंने 6th क्लास में सिवा करा, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। सुमन, आप चिड़िया को ऐसे जिंदा क्यों ले आए? आपने क्यों नहीं सिवा किया? तमाम जगहों पे गई मगर उन जगहों हर एक जगह पर कोई एक देखने वाला मौजूद था, इसलिए मैं जितना नर्वस थी। देखने वाला कौन था? और वो देखने वाला हमारा खुदा था। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि सुम्बुल को खुदा पर कितना ईमान है, सुम्बुल के अंदर खुदा का कितना खौफ है। ऐसा इंसान चोरी छुपे ना ही कभी किसी की गिबत कर सकता है और ना ही चोरी कर सकता है और ना ही कोई गलत काम कर सकता है। इसीलिए मैं सुम्बुल को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और याद रखिए कि आप लोग कहीं भी चोरी छुपे किसी की गिबत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक देखने वाला मौजूद है और वो है हमारा खुदा। आप जहाँ भी चले जाइए, खुदा हमें हमेशा देख रहा है, उसकी नजरें हमेशा हम पर हैं, वो हर जगह मौजूद है और यही है वजूद खुदा। शुक्रिया। आइए हम फिर से प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं अपने अगले मुकर्रिर यानी मेरी मुराद है हज़रत इस्लाम मौलाना फिरोज साहब से कि वो आएँ और अपनी तकरीर से तलब-ए-इज़ाम के हुज़ूर को मनव्वर फरमाएँ। आपके रूबरू होने जा रहे हैं मौलाना फिरोज साहब। वाक़ई एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं और खिदमत खल्क़ अंजाम दे रहे हैं बिलख़ुसूस तुल्लाब के लिए और दीनी उलूम दुनिया के मुताल्लिक़ बहुत काम कर रहे हैं जनाब मौलाना फिरोज साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन सलवात। बुजुर्गान की मौजूदगी में और असातिज़ा के हुज़ूर को अर्ज़ करने से बेहतर ये है कि इनकी नसीहत आमेर और बलबला खेर और हिम्मत बढ़ाने वाली तकरीरों को सुना जाए। बस एक बात की जाने मैं इशारा करना चाहता हूँ, वो ये कि ज़माना और वक्त और हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इंसान को तो हर ज़माने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान को दीन की ज़रूरत की जानिब मुतवज्जे किया जाए कि हमें दीन की ज़रूरत क्यों है और दीन की पाबंदी करने की सूरत में हमें इस दुनिया में क्या मिलने वाला है और इस दुनिया के बाद हमें आखिरत में क्या नसीब होने वाला है। इसलिए कि अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि दीन की पाबंदी से हमारी आखिरत संवरती और सुधरती और बनती है, तो वो कहेगा कि नब्द तो हमारी ये ज़िंदगी हयात दुनिया है, इस दीन की पाबंदी का हयात दुनिया में क्या फ़ायदा होगा और हमें उससे क्या नतीजा हासिल होगा। तो ज़रूरी है कि हम जहाँ पर उसे दीन की उखरवी ज़रूरत की जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं, उसे दुनिया में भी दीन के रोल और दीन के किरदार और दीन के अहम नक्श को भी बताना पड़ेगा, ताकि वो दुनिया में दीन को इसलिए अपनाए कि एक सरबलंद और सरअफराज ज़िंदगी बसर कर सके
اگر دین کی ضرورت کو کسی نے سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو آج اس کے بہت سے ایسے نمونے ہم لوگوں کے سامنے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ زبان کے دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دین کی پابندی کا نتیجہ ہے اور مذہب حقہ، مذہب اہل بیت کے گرویدہ افراد کا خاصہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے جہاں پر ایک طرف اتنے ممالک ہیں جو مسلمانوں اور اسلامی حکومتوں کے نام پر چل رہے ہیں، اور ایک طرف وہ ممالک ہیں چند گنے چنے جنہیں 10 کی تعداد میں بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 5 کی تعداد میں بھی نہ پہنچے، لیکن دین کی پابندی جب کرتے ہیں تو پوری دنیا جس کے تلوے چاٹتی ہوئی نظر آتی ہے، جب وہ دین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو دنیا کی سپر پاور اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں اور بے وقت و بے حیثیت نظر آتی ہیں۔ تو ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دین کا دامن ہر حال میں تھامنا پڑے گا تاکہ ہم ایک عزتدار زندگی گزار سکیں اس دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکیں۔ یہ ہے دین کی مختصر طور پر۔ اس میں یہ ہے کہ پوری ایک بحث ہے جس کو یہ کلاسیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان کی مناسبت سے ہو جو مختلف اداروں کی جانب سے منعقد ہوتی ہیں، اور چاہے وہ سمر کلاسز کے عنوان سے ہوں، تو انہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، خواتین کو اور جو بھی اس طرح کے دین سیکھنا چاہتے ہیں ان کی خدمت میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور پروردگار عالم ہم سب کو دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی یہ بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے میں گزارش گزار ہوں جناب مولانا جاوید مصطفی صاحب کو سے کہ وہ آئیں، جنہوں نے رمضان مبارک میں بہترین دروس بھی پیش فرمائے آپ کے درمیان۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو کہ ماہ رمضان کے دروس تھے، آئیے میں پھر سے دستاویز لے کر گزارش کرتا ہوں جناب مولانا محمد میاں صاحب اللہ کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنی بہترین تقریر سے آپ کو ضرور منور فرمایا آپ کے گروپ کو۔ اور یہ واقعاً ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا بتاؤں، آپ نے لکھنؤ جیسے شہر میں خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئیے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا بہت اپنے تجربات سے آپ کو آشنا فرمائیں گے۔ السلام علیکم بولنے کے لیے بہت ہے وقت بہت کم ہے، لیکن یہ کہ واقعاً شکریہ ادا کرنا چاہیے ان بچوں کا، ان بچوں کی ماؤں کا کہ جنہوں نے ماہ رمضان کی ان تمام صعوبتوں اور مشکلات کو مد نظر رکھنے کے باوجود اپنی عبادات و طاعات الہی میں مصروف ہونے کے باوجود وقت نکالا، بچوں کو بھی بھیجا اور بہترین جو مناظر دیکھنے ملے اس مرتبہ۔ بہت ایسی جگہ تھی جہاں پر مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پہل ہے، اور رضا حسین صاحب جیسوں کی واقعاً قدر کرنا چاہیے۔ خدا ان کو سلامتی دے، طول عمر عنایت فرمائے۔ فلان کے ساتھ اگر کام ہو تو شاید بہت زیادہ مسئلہ سنبھال ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ ایک سماج کو بدلنے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن اگر سر سے سر جڑے رہیں اور ہدف اور منزل معین رہے تو پھر طولانی راستہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ منزل ایک ہو، ہدف ایک ہو، فلان مل کر کے بنائیں تو بھی جتنی سخترین ہمارے سامنے جو راہیں ہوں گی ان کو بھی ہم سب اپنے پیروں تلے کچل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ کی طرف سے اسلام رسمین مولانا محمد عابد صاحب کا پہلے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر جگہ پر کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، اور جو کلاس ہمارے دوسرے نام سے چل رہے تھے
हवाले से चला रहे थे इनकी सवाल। तकरीबन हमारे इनमें शुरू से आखिर तक ना तकरीबन 2000 बच्चों ने शिरकत की। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको उनकी रहनुमाई के लिए कितने असातिज़ा की क्या ज़रूरत है। मैं सिर्फ यही इल्तिमास करूँगा अपनी कौम से कि आप शाना बशाना होकर जो काम हो रहे हैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर भेजें, और ताकि ये माशरा जो बदल रहा है धीरे धीरे आप देखेंगे 4-5 साल के अंदर आप अंदाज़ा लगाएंगे इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऐसे रोशन होगा कि जो घरों में भी बैठे हुए हैं, जो उनको नहीं भी जानते हैं, जो दूसरी कौम के हैं, उनके नाम से सब बच्चों की तरफ से और उनके गार्जियन की तरफ से ये गुलदस्ता रजा साहब को दे रहे हैं। हकदार ये हैं कि उन्होंने इतना बड़ा इस्तेमाल किया और वाकई बहाना ढूंढते हैं ये बच्चों को तालीम देने। देखिए रमज़ान मुबारक के दुरुस्त के नताइज का ऐलान होगा इंशाअल्लाह आज, और आपके सामने एक बेहतरीन आलिम की तकरीर होने जा रही है। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने के बाद आप पर फितरा वाजिब हुआ है। फितरा वाजिब होने का मतलब ये होता है कि आप अपने महल्ले में, जैसा कि हुक्म होता है मुस्तहिदीन इंतज़ाम की तरफ से भी, कि अपने महल्ले में पहले देखें, महल्ले में कोई ना मिले तो उसके बाद दूसरे इलाके में जाएं। लिहाजा जहां आप फितरा देने जा रहे हैं, फितरा वाजिब होने का एक मकसद ये भी है कि सिर्फ साल में एक मरतबा रोज़े ईद या शबे ईद नहीं, बल्कि जिस गरीब के घर आप फितरा देने के लिए शबे ईद गए हैं, इंशाअल्लाह साल भर उसके घर पे आप जाते रहेंगे, उसका घर देखते रहेंगे, मिजाज खुशी करते रहेंगे। यही मकसद ईद का भी है और यही मकसद माह रमज़ान मुबारक का है। मेरी मुराद है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुराद रजा साहब से के वो आए और अपने जामे और माने फसीह व बलीग तकरीर से मोमिन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। एक बुलंदतरीन सलवात इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन जलसा, बिरादरान व ख़वानात, उलमाए किराम, हमारे दीन ज़वी एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अज़ीमुश्शान जलसा जो तालीम और तरबियत के उन्वान से मुनक़िद हुआ है, और जिन लोगों ने माह कुरान माह मुबारक रमज़ान में माह कुरान से इस्तेमाल किया है, उनकी हौसला अफजाई और तशरीफ़ के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और बाकायदा ये वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि हर सिंफ से और हर तबके से लोगों ने शिरकत की है, जो यकीनन शिरकत करने वालों के साथ साथ प्रोग्राम करने वालों की भी जिद्दियत और उनकी दिलजमी और कौम मिल्लत के हवाले से उनकी हमदर्दी का गम्मात है, बयानगर है। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने माह मुबारक रमज़ान में शिरकत की है इन क्लासों में, इसको जारी व सारी रखें और जहाँ तक हो सके अपनी हिम्मतों को बुलंद रखें। हमने अब तक जो भी नुकसान उठाया है वो अपनी कम हिम्मती की बुनियाद पर नुकसान उठाया। हमने जो कुछ भी नुकसान बर्दाश्त किया है वो अपने हौसले के पस्त होने की बुनियाद। जो कुरान मजीद जिससे हम माह मुबारक रमज़ान में फैज़याब हो रहे थे, ये फ़कत कुरान मजीद माह मुबारक रमज़ान तक महदूद न रह जाए, बल्कि ये कुरान मजीद
हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाए, और इस हद तक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि हम इस कुरान के बगैर जिंदा रहना भूल जाएं। और जिस दिन हमारे वजूद में ये बात सरायत कर जाएगी कि हम कुरान के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो सारी दुनिया हमें मिटाना चाहेगी, फिर भी वो मिट जाएगी, हमें मिटा नहीं सकती। आज हम देखें, शहीद हसन नसरुल्लाह का नाम जिंदा जावेद है। जब जिंदा थे तब भी नाम जिंदा जावेद था, दुनिया से गुजर गए तब भी नाम जिंदा जावेद। हम अपनी बात कहें, अपनी बुनियाद पर करें। खवातीन को बहरहाल मर्दों से ज्यादा काम होता है, पता नहीं चलता है, उनका काम घर में रहती है, लेकिन मर्दों से ज्यादा काम होता है। खुद एक तरबियत औलाद बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन शहीद हसन नसरुल्लाह की ज़ौजा हर 2 दिन में एक कुरान खत्म करती है, और ये कोई 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है। गुज़श्ता 20 साल से यही जिंदगी की रूटीन है कि वो खातून हर दूसरे दिन पर कुरान मजीद खत्म करती है। इमाम मुगनिया की ज़ौजा हर दूसरे दिन कुरान खत्म करती है, और वो उनकी जिंदगी का रूटीन है। जो इसका मतलब क्या है, न इमाम मुगनिया की ज़ौजा आसमान से उतर के आई है, न शहीद हसन नसरुल्लाह की ज़ौजा आसमान से उतर के नीचे आई है, बल्कि इसी दुनिया में उन्होंने भी जिंदगी बसर की है। वो भी किसी माँ और बाप की आगोश की परवरदा है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है, उनकी हिम्मत बुलंद है। और जिसके पास हौसला होता है वो कुरान से हिम्मत हासिल करता है, और जो कुरान से हिम्मत हासिल करता है वो समाज और मुआशरे में इत्तेहाद और वहदत की बात करता है। और समाज और मुआशरे में उसी वक्त इत्तेहाद और वहदत ईजाद होगा जब कौम मिल्लत के अमायदीन एक हो जाएंगे, जब कौम मिल्लत के रहनुमा एक हो जाएंगे। और आज हमारे मुआशरे में जो गैबत का एक बुनियादी सबब है वो हमारा आपसी इख्तिलाफ है। अगर हम एक दिल हो जाए तो मौला इमाम ज़मान के बकौल जो शेख मुफीद को उन्होंने आज से 1000 साल पहले खत लिखा था, उसमें यही लिखा था कि अगर हमारे शिया अला इज्तिमाई मिनल कुलूब, हमारे शिया एक दिल हो जाए, गैरों से कोई उम्मीद नहीं है एक दिल होने की, जबकि उनसे भी चाहते हैं कि वो भी एक हो जाए, हम सबसे चाहते हैं, लेकिन इमाम चाहते हैं कि पहले अशियाना, हमारे शिया जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, मुनफिल इंतजार नहीं, बूढ़ा इंतजार नहीं, जवान इंतजार, वो इंतजार जिससे किसी को बुलाने की तमन्ना हो, वो इंतजार नहीं कि वो जब आएंगे तो सब काम होगा, वो इंतजार के जिसमें हमको बहुत कुछ करना है ताकि वो आए। ऐसे इंतजार के लिए जो बुनियादी शर्त है उसका नाम है इज्तिमाई कुलूब, एक दिल होना। ये सारे प्रोग्राम माशाअल्लाह लखनऊ में हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 10 जगहों से ज्यादा प्रोग्राम हो रहे थे, अलग अलग इदारों में। एक इदारे की तरफ से जैसे आपने अभी सुना 2000 शुरू की मुख्तलिफ मकामात पर लखनऊ, खुद इदारे मकसद हुसैनी की तरफ से मुख्तलिफ उलमा मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम हो रहे थे। इसी तरीके से दीगर इदारों की तरफ से भी प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे थे, और उन सब ने अपने अपने हिस्से की एतबार से अपना अपना हक अदा किया। वो दिन सबसे अहम दिन होगा
اور وہ دن امام زمانہ کے ظہور کو قریب سے قریب تر کرنے کا دن ہوگا جب یہ سارے ادارے، جب یہ ساری کمیٹیاں، جب یہ سارے افراد ایک زمانے میں بیٹھ کے سب لوگ لائے عمل طے کریں گے کہ کس علاقے میں کہاں ضرورت ہے، وہاں پر یہ کام کرے، وہاں پر یہ کام کرے، وہاں پر وہ کام کرے، تو ایک ایسا سماج ہوگا کہ دنیا میں ضرورت ہوگی کہ لوگ کہیں کہ وہ سماج ہے، وہ معاشرہ ہے جو وقت کے امام کا انتظار کرتا ہے۔ اور وہی وہ دن ہوگا جب ظہور کا زمانہ نزدیک ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے ہمارے برادر بزرگ سرکار حجت الاسلام والمسلمین آقا رضا حسین دعوت برکاتہ، خدا ان کو امام زمانہ کے سائے میں صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ ان کی ہمت، ان کی لگن، ان کا حوصلہ آج بتا رہا ہے کہ علاقے میں، سماج میں انہوں نے ایک بیداری کی لہر دوڑانے کی کوشش کی، اور اس میں یہ کامیاب اس حد تک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی جو ہمت سے کام دے گا، جو حوصلے سے کام لے گا، جو بھی اپنی ہمت کے مطابق کام کرے گا، تو جب ہمت بلند ہوتی ہے تو بدن کی کمزوری بھی کمزوری نہیں رہتی ہے۔ جب ہمت پس رہتی ہے تو کبھی آدمی بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ جب ہمت بلند ہوتی ہے تو کمزور سے کمزور آدمی بھی ایسا کام کر دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ کربلا کا درس، انسانیت کا درس، تمام درس یہ ہے کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عِبَادَنَا أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اے نبی تذکرہ کیجئے ہمارے بندوں کا، بندگی صرف خدا کے لیے، جو جن میں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کے پاس ہمت بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔ فقط ہمت کافی نہیں ہوتی ہے بلکہ بصیرت کی ضرورت ہے کہ ہماری ہمت سے کہیں دشمن فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہے۔ ہماری ہمت بھی ہو، ساتھ میں بصیرت بھی ہو، تو خدا ہمیں ایسے مخصوص کرتا ہے کہ خدا کی یاد پھیلانے والوں میں ہمارا نام ہو جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جلسہ اور اس قسم کے متعدد جلسہ مختلف مناسبتوں کی بنیاد پر، ابھی یہ زمانہ مثال کے طور پر عشرہ صادقیہ کا زمانہ چل رہا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہے۔ 15 شوال سے 25 شوال کے درمیان یہ 10 دن وہ ہے جو معنون ہے امام علیہ السلام سے۔ یہی ادارے، یہی افراد اور اس قسم کے دیگر افراد فضل سجائیں، محفل سجائیں جس میں امام علیہ السلام کا تذکرہ ہو، تاکہ لوگوں میں بیداری ہو کہ امام نے کس طریقے سے ان حالات میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں جس طرح ہر قسم کے لوگ، علم کا دروازہ ایک طرف اٹھ رہا تھا، فلسفے کا میدان ایک طرف اٹھ رہا تھا، ہر طرف سے لوگ امامت کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اتحاد کے نظام کو محفوظ رکھتے ہوئے، وحدت کے نظام کو محفوظ رکھتے ہوئے امام علیہ السلام نے اس حوصلے کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ دشمنوں کے نرغے میں تمام لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے بتایا کہ اگر دشمنوں کے دل میں بھی اپنی جگہ بنانا چاہتے ہو تو علم کے ذریعے سے جگہ بنا سکتے ہو، معرفت کے ذریعے سے جگہ بنا سکتے ہو، لیکن یاد رہے وہ علم جو تمہیں خدا سے دور کر دے کبھی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، وہی علم تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا جو تمہیں خدا سے نزدیک کر سکے۔ اس لیے ساری دنیا علم کی بات کرتی ہے، دین اسلام پہلے تربیت کی بات کرتا ہے، پھر علم کی بات کرتا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں علم جب گندے ظرف میں جا رہا ہے تو کس طریقے سے علم کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کس طریقے سے یہ علم بند کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ بھٹکتے ہوئے بچے، سسکتی ہوئی جوانیاں، یہ خون خرابہ، یہ سب علم کرا رہا ہے، جہل نہیں کرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ایسے ظرف میں گیا ہے جو بدکار ہے، بددینت ہے، بدسرشت ہے، قمار باز ہے، شراب خور ہے، بدکار ہے، عیش و نوش کا رسیہ ہے۔ اس لیے یہ علم نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن وہ علم جو فائدہ پہنچاتا ہے پہلے اس
ضرورت ہے. جب ہر ایک محسوس کرے گا تو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی طرف سے ادارے وسطی کے اراکین کی طرف سے حجت الاسلام والمسلمین اور مولانا سید رضا صاحب اللہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ہمیشہ آپ نے خوش بنائی فرمائی, ہمیشہ مشوروں کی طرف متوجہ کیا, جو کمیاں ہیں اس کی طرف بھی متوجہ کیا. لہذا آپ نے اپنی ٹرین کینسل کرا کر آج کے پروگرام کے لیے رات کے 2:30 بجے کی ٹرین کا کرایا. آج ان کو کل مجلس پڑھ کے پٹنہ جانا تھا. لہذا آپ کی قربانی صاحب اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ مولانا کی سلامتی کے لیے سب مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس شربت جیسے تبرک کی تقسیم کے ساتھ ساتھ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس روحانی ماحول میں ایک روحانی تبرک کی تقسیم کیا جائے. لہٰذا میری مراد ہے جناب توحید صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور آ کر مدرخانی اہل بیت پیش فرمائیں. میری مراد ہے جناب توحید صلی اللہ علیہ وسلم. بلند آواز سے بولے محمد و آل محمد صلی اللہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے, امام سے نو لگائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے, حرم پہ نظریں جمائے رکھنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے, چراغ الفت جلائے رکھنا. ہے انتخاب حسین باقی, وہ آنے والا تھا چکا ہے. عقیدہ درست رکھنا, جو ان کی نصرت کی ہو تمنا. ظہور کا وقت آ گیا ہے, عمل کو بھی آزمائے رکھنا. نہ نیند آئے نہ اونگ آئے, دل و نظر سے سامرا سے نہ جانے کس راستے سے آئے. ظہور کا وقت آ گیا ہے, ہر ایک رستہ سجائے رکھنا. نہ حب دنیا سے کچھ علاقہ, نہ غیر سے راہ و رسم رکھنا. تمہاری دولت ہے علم تقویٰ, کرے گا دجال اس پہ حملہ. ظہور کا وقت آ گیا ہے, تم اپنی پونجی بچائے رکھنا. یہی کہیں آس پاس ہوگا, وہ آنے والا تھا
ظہور کا وقت آ گیا ہے مغالیوں سے بنائے رکھنا نئے نئے نغمائے مدحت جو روز کہہ کھلا زیارت جو صفت جعفر امام کے در پہ آ پڑے ہو ظہور کا وقت آ گیا ہے تم اپنا بستر سجائے رکھنا کیونکہ بچوں کو بہت دور جانا ہے کافی دور جانا ہے لہٰذا ہم آصف خان ہیں اور سے علماء سے ہمارے دوست ہے کہ ہمارا وہ دل چاہتا ہے سبھی بولے بولے بچوں کی مت افزائی کے لیے لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم جا رہا ہے کچھ بچے وزیر گنج سے ہیں کچھ بچے لاکش روڈ سے ہیں کچھ بچے شیش محل سے ہیں بچیوں کو دور جانا ہے لہٰذا ہم مختصر کر رہے ہیں حضرات بس آخر میں 2 منٹ آپ سے میں لوں گا اور اس کے بعد ہمارے اگلے ناظم جناب امان رضوی صاحب آئیں گے جس کے بعد کچھ شخصیتوں کی مختصر تقریریں ہوں گی اور تقسیم انعامات و اسناد ہوں گے بس میں آخر میں چونکہ امام زمانہ سے متعلق یہاں پر مدد خانی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جلد از جلد ناصران امام زمانہ میں شامل فرمائیں اور ان دروس اور علومی سلسلہ ان سب کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں ہمیں امام اپنے لشکر میں شامل فرمائیں ظاہر سی بات ہے آپ اس وقت امیجنیشن کریں مولانا رضا حسین صاحب اللہ نے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا ہے یہاں پہ اسٹیج کرسیاں صوفے اور سارے اہتمامات کیے ہیں لیکن آپ فرض کر لیں کہ یہاں پر نہ اسٹیج ہو نہ مائک ہو نہ چیئرز ہوں نہ صوفے ہوں نہ سامعین ہوں اور اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں کو یہاں دعوت دے دیں تو یہ آنے والے مہمان کہیں گے مولانا آپ ہمیں یہاں بلا کے ذلیل تو نہیں کرنا چاہتے ہم یہاں آ کر کیا کریں نہ ہماری تقریر کوئی سننے والا ہے نہ یہاں پر کوئی اہتمام ہے نہ مائک ہے نہ اسٹیج ہے نہ کرسی ہے نہ ساری کوئی اہتمام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کو بلانے سے پہلے اہتمام کا کرنا ضروری ہے تو آپ جب ایک چھوٹے سے مولانا کو بلانے کے لیے اہتمام پہلے کرتے ہیں مولانا کو بعد میں بلاتے ہیں اب آپ فیصلہ کریں کہ بلانا ہے امام زمانہ کو لہذا امام زمانہ کو اگر بلانا چاہتے ہیں تو آپسی بغض و حسد کو پہلے دور کیجئے آپسی اختلافات کو ختم کیجئے آپسی گندگیوں کو دور کیجئے اس کے بعد بارگاہ امام زمانہ میں دعا کیجئے مولا انشاءاللہ ہم سب کی دعا کو سنیں گے وعجل علی ظہوری ایک صلوات پڑھے محمد و علی محمد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے 22 گھنٹے کلاس لے گئے تھے جو کام فائل انسولیشن رکھا گیا ہے تو چرچے میں تشریف لائے جناب علی جابر صاحب چیئرمین شیعہ سنگر بورڈ جناب حسن یعقوب صاحب ایڈوائزر پر لکھنؤ ممبر AI کمیٹی گورنمنٹ آف یو اب ہمارے پاس 2 مقرر بچے ہیں ان دونوں کے مقرر کی تقریر کے بعد یہاں پر تقسیم انعامات کی پروگرام شروع کیا جائے گا اپنے مزاحی پروگرام میں جناب علی جابر صاحب چیئرمین شیعہ سنگر بورڈ سے جو تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اسٹیج پہ بیٹھے علماء صاحب اور سامنے بیٹھے ایجوکیشن فیلڈ کے ہمارے لوگ اور سبھی ہماری بہنیں بچے آج میں پچھلے سال بھی اس پروگرام میں آیا تھا مولانا رضا حسین صاحب کے ساتھ ہر سال کی طرح دینی علمی مقاصد سے کلاسز آرگنائز کرتے ہیں اس پر پورا یقین ہے کہ اس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں اس لیے کہ محض
चले जाना, किताब खोल लेना, क्लास अटेंड कर लेना, टीचर की उस्ताद की बात सुन लेना ज़रूरी नहीं है। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना और सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक के उन चीज़ों को टेस्ट करके देखना कि ये जो हमें बताई गई है ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है और ख़ुद उसके बारे में फैसला करना बहुत ज़रूरी है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक आपके अंदर खुद सही गलत का और सेल्फ एक कॉन्फिडेंस उजागर होगा। आपके जो टीचर हैं, उलमा हैं, उस्ताद हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो आलिम दीन है, जो दुनियावी इल्म रखते हैं, उलमा की जमात में सब आ गए, आपको दीन की शरीयत की बात बता रहे हूँ, चाहे ज्योग्राफी की और साइंस की। सबसे ज़्यादा हमारे दीन इस्लाम में, हमारे शरीयत में, हमारी किताब में और हमारे उलमा के बयानात में, हदीस में इल्म हासिल करने पर जोर डाला कि ये सभी जानते हैं, सुनते रहते हैं, लगभग हर तकरीर में ये बात आपके सामने लाई जाती है। लेकिन फिर आज की तारीख में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस बात को हमने सिर्फ सुना है, ये जिंदगी में अपनाया नहीं है। आज हम उन तमाम लोगों से पीछे होते चले जा रहे हैं जिनसे हम किसी ज़माने में बहुत आगे थे। लोगों का आगे होना दुनिया में उसकी जो एक मीज़ान है वो माल से, पैसे से, बड़े घर या गाड़ी से जुड़ी जाती है। ये एक हमारे माशरे का एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप देखेंगे तो बाहर लोगों की हैसियत जो है वो उनके इल्म से है, उनके अंदर खुद कितना कंटेंट है, कितना वजन है, वो जिस मुख्तलिफ शोबे के लोग हों, अपनी फील्ड के लोग हों, वो उसमें कितनी महारत हासिल करते हैं। ये बहरहाल क्योंकि जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल जो कमज़ोरी और वीकनेस है आज हमारे तबके में, वो हमें एक हद तक के कंस्ट्रेन करती है बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में आगे बढ़ने से। उसके लिए जो हमारे तमाम इदारे हैं, हमारे उलमा हज़रात चला रहे हैं और हमारे कौम के जो, हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने उनके इस्तेमाल से ज़्यादा बख्शा है, दिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना, उनकी मदद करना कि वो अपने शोबे में आगे बढ़ सकें, एक्सेल कर सकें। और फिर उन बच्चों की जिम्मेदारी है कम्युनिटी को गिव बैक करना, उनको वापस करना। मैं बहुत इदारों से तो नहीं, हाँ 1-2-3 इदारों से ऐसे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी करीबी इदारों से भी जुड़ा हुआ हूँ अपनी कम्युनिटी के, जहाँ एजुकेशन के काम के ऊपर प्योरली वर्क किया जाता है। और मुझे बहुत आज की तारीख में भी हमारी कम्युनिटी में इस तरह के इदारों की बहुत ही खासी कमी, इस तरह के लोगों की बहुत खासी कमी है। हमने एक छोटी सी शुरुआत यहाँ आपके इलाके में की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वादा था तो पूरे किसी भी, अभी हमारे क्लासेस ज़्यादा नहीं है, लोअर क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे और आपको दुआ भी तो क्लासेस किए जाएंगे। हमारा फिर से एक बार ऐलान है कि हमारा जो स्कूल है उसका जो मॉडल है वो नॉन कमर्शियल है। आप जब कोई भी बच्चा, कोई पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जनरली, उनसे किसी तरह की फीस, जो एक फीस स्ट्रक्चर है उसमें हर तरह का डिस्काउंट और 0 फीस का भी सिस्टम है। हमारा एक मोटो है, कोई भी बच्चा हमारी कम्युनिटी का पैसे के अभाव में उसकी इब्तदाई तालीम हमारी हैसियत उसे बढ़ाने की है, वो कहीं से ना गड़बड़ाए और आप वहाँ जाके
वहाँ पे ऐसे बच्चों का एडमिशन कराया जा सकता है। अभी क्योंकि हमारे स्कूल में आगे क्लास नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि हमारे यहाँ जितने क्लासेस तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसकी वजह से बड़े शहर में जो स्कूल हैं वहाँ उनके एडमिशन में बहुत सहूलत मिल रही है। उनको इंटरव्यू में वहाँ जाके और वहाँ पे जो सवाल जवाब होते हैं सहूलत मिल रही है। इंशाअल्लाह इस फील्ड के लोगों की अगर और मदद रही तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी एजुकेशन की फील्ड में छोटे से लेकर बड़ा जो भी काम हो रहा है उनको हमेशा उसका सपोर्ट करना है, हमें हमेशा उसको आगे बढ़ाना है, वो दीनी हो चाहे दुनियावी हो। इसलिए कि खास करके हमारी कम्युनिटी ने हमेशा दीन का और दुनिया का, दुनियावी एजुकेशन का साथ जो है पकड़े रखा है। और इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम उतने भटके और कम्युनिटी नहीं है कि जितने समाज में दूसरे लोग आज तक। खास करके फिर मैं एक बार आप लोगों से आखिरी अर्ज करूँगा कि आज फिर बहुत ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में एक जो बदलाव जो हमारा जो मुझसे डिस्कस भी हुआ इस फील्ड के और हुआ कि अपने कैरेक्टर में हमें किसी भी दुनियावी बैड एक्सपीरियंसेस के चलते कोई भी हार्डनेस हार्शियसनेस नहीं लानी है। कहने का मकसद हमें सख्त दिल नहीं बनना है जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। हमारे अइम्मा जो हमारे रोल मॉडल्स थे उन्होंने हमें एक दूसरे से समाज से नरम दिल होना सिखाया है, एक दूसरे से सहूलत से मामला करने के लिए सिखाया है। आज जो हमारी कम्युनिटी में खास करके जो बहुत क्लोजली एरियाज में रह रही है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा हमारी तादाद है, वहाँ पे सब मसाइल रोज़ सुनने में आते हैं कि आज हम अपने दरमिली हमारी जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे जो है उससे दूर हो रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश पैदा करने की, इसलिए कि हम इस मुल्क में भी और दुनिया में भी मुसलमानों के लिहाज से अक़लियत में अक़लियत है। और हम लोगों को खास करके अपने एजुकेशन के बल पे अपनी यूनिटी के बल पे आगे बढ़ना है और यही एक लौता हमारे पास ऑप्शन बचा है। इसी के साथ फिर एक बार खास तौर पर मौलाना रज़ा हुसैन साहब को, हमारे जितने भी उलमा हज़रात हैं इसमें उलमा जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं उनके सबके लिए एक बार इल्तिमास से दुआ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ और आप लोगों से जो यहाँ लोग बैठे हैं इनसे आई थिंक कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ इंशाअल्लाह आगे सीखने की और उन्हें सिखाने की उम्मीद है। इसी के साथ बस अली साहब चेयरमैन ऑफ वक्फ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह जो काम हो रहे हैं इसके अंदर खास तौर से हमारी जब भी मुलाकात होती है आपसे हम लोग इसी पर गुफ्तगू करते रहते हैं कि एजुकेशन के मैदान में अगर हमारी ज़मीनें और जहाँ जहाँ के ऊपर भी हैं उसमें अगर हम एजुकेशन के लिहाज से अगर उसमें स्कूल कॉलेज मदरसे सबको अगर व्यस्त कर देंगे, सबको अगर बिजी कर देंगे तो कल किसी की निगाह उसके ऊपर गलत नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज है कि हम इन जमीनों को किस सूरत से अपने सही मसरफ में लाकर हम दीन और दुनिया में तरक्की कर सके। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दोबारा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दुरूद भेजे मोहम्मद इस्लाम के माने हमारा इस्लाम बुलंद सलवात। अब असल में हमें से हॉल में बैठे हुए रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे दोस्त प्यारे बच्चे और मौलाना रज़ा हुसैन साहब की पूरी टीम को मेरा सलाम। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अप्रिशिएट तो बाद में करूँगा। मैं पहले एक
तकरीर से स्टार्ट करता हूँ अपनी तकरीर, बल्कि ये तकरीर नहीं है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। इन बच्चों से लोकल गार्जियन कहिए, मेंटोर कहिए, बड़े भाई कहिए के सिलसिले से जो है मैं शुरू करना चाहता हूँ। मेरा मानना है लाइफ इज द नेम ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक जिंदगी की सांसें चल रही हैं आप लोग कुछ सीखते रहेंगे। और तालीम, क्योंकि ये तालीम से जुड़ा हुआ प्रोग्राम, तालीम कोई मंजिल नहीं, तालीम एक रास्ता। मंजिल चेंज होती रहती है, वक्त ब वक्त हर इंसान की मंजिल चेंज होती रहती है, लेकिन तालीम जो रास्ता वो भी एक कंटिन्यूअस है। और इस रास्ते को मौलाना रजा हुसैन साहब रोशन कर रहे हैं, ताकि उस रास्ते से ये जब बच्चे गुजरे तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। तो मेरी मौलाना रजा हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशंस, आई एम ग्रेटफुल दैट ही हैज कॉल्ड मी। पहले भी मैं इनके हर प्रोग्राम में आने की कोशिश करता रहा हूँ, मेरे वालिद से भी इनके बहुत मोहब्बत थी, लेकिन इसी को मैं मेनटेन करता की कोशिश करता। दूसरी चीज, मैं जब आ रहा था तो मैंने सोचा इन बच्चों पे गुफ्तगू करूंगा तो बोलूंगा क्या कहूँगा। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तकरीर में एक तो ड्रग्स रखूँ, छोटी तकरीर रखूँ और एक मैसेज दे सकूँ जो जिंदगी में लोगों के काम आता है। तो 2-4 पॉइंट मैंने अपनी कार में मैंने अपनी जिंदगी को के हवाले से कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, जहाँ तक भी पहुँचा, सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल हो, ये तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो बच्चों, ऑलवेज वैल्यू एंड टाइम एंड बी डिसिप्लिन, दिस इज द फर्स्ट थंब रूल व्हिच आई हैव लर्न इन माय लाइफ। इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट ना करो, लिंक्डइन पे करो, अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपको मालूम नहीं होता। नंबर 1 थंब, फेलियर जिंदगी का एक स्टेपिंग स्टोन है। हर आदमी फेल होता है, और चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, जिंदगी में फेलियर उसकी जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन उसको स्टेपिंग स्टोन माने ताकि उस स्टोन पे चढ़ के आगे बढ़ सके। नंबर 3, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। पैसे से आपकी मरने के बाद आपकी इज्जत नहीं होगी। पैसे से जब तक आप जिंदा हैं लोग आपको सलाम करेंगे। असली जिंदगी मरने के बाद आपकी सक्सेसफुल है क्या कैरेक्टर था, वो आपको इंटीग्रिटी, एथिक्स और कैरेक्टर मिलेगा। और नॉलेज ऑलवेज अट्रैक्ट्स मनी, ये तो बहुत ही आम शब्द है जो सभी को मालूम है। दूसरी चीज जो कि आज के स्टार्टअप का दौर है, बच्चे कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं। ठीक है, रिसोर्सेज सबके पास नहीं होते, लेकिन 80% लोग कामयाब हैं वो लेस रिसोर्सेज में ही कामयाब बने। एक हमारी एडवाइस है, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, छोटे से शुरुआत करो और फोकस करो और फौरन शुरुआत करो। ये ना सोचो अभी ये हम करेंगे, जो करना है कर डालो, फेल हो पास हो देखा जाएगा। बाकी इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 25 साल से हूँ, डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज में मैं हेड किया, अभी मैं MNCs में हूँ। लेकिन इसके अलावा मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि आप जब परेशान होते हैं तो अगले व्यक्ति याद आते हैं। बाकी जितना कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, दुनिया का वर्ल्ड है, आपको फेसबुक पे लिखिएगा कि बहुत खुश हुआ, कोई खुश लिखते हैं, कोई लिखेगा, मेरा आप परेशान होंगे तो एडवाइस घर से जो लोग वाबस्ता है वही आपके काम आएगा। मैं गवर्नमेंट एडवाइजर भी हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हूँ, उसके अलावा मुझे फख्र है कहते हुए मैं एनजीओ में ऊंचे मजदूरियाँ करना है अक्सर। मैंने अपने वालिद की लेगेसी को मेंटेन रखा है और मैं अपनी तकदीर को एहतराम दूंगा। इस रोशन हॉल में रोशन प्यार लोग बैठे हैं, रोशन चेहरे बच्चों के हैं और मेरी दुआ है कि सारे ये रोशन प्यार बच्चे अपने ज़िंदगी में रोशन करें अपने माँ बाप का नाम। और मैं एक शेर से ये कंक्लूड करूँगा, अनवर राय वकील साहब का शेर था, हमारे चचा जैसे थे,
उसको सवाब मिलेगा इस शेर का। जानवर ये आरज़ू है ज़बा पर हो या हुसैन, तो हसन ये आरज़ू है ज़बा पर हो या हुसैन, जब जाम जिंदगी का छलकता दिखाई दे। बहुत शुक्रिया की तरफ से अपने ब्रदर अजीज हसन याकूब साहब दामाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप और आपके भाई सब सैफ याकूब और आप और दूसरे भाई तीनों हमेशा इदारे का अकाउंट को मेंटेन कराना बच्चों के जरिए से जो आपके नीचे हैं उसके जरिए से, और वो मशवरे देना कि ये बच्चे हमेशा हर साल इंशाल्लाह एक बार बैठ कर ये होता है कि जिसमें हम लोग कहते हैं मुशावरा, समझ रहे? मुशावरे का मतलब ये होता है कि जो उसके स्पेशलिस्ट हैं उससे बच्चों की मुलाकात करके बच्चे में क्या गुण पाए जाते हैं, बच्चे में क्या एबिलिटी पाई जाती है, उसके जरिए से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को दावत देना। ये अकेले आते हैं, हत्ता के सब भाई भी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, और ये मशवरे का हमेशा इलाज मुशावरे का रखा जाता है। हम आपके लिए काउंसलिंग जिसको कहते हैं कि उसका ये होता है, तो लिहाजा मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। और आपके वालिद साहब का खास जो था वो ये था कि लखनऊ और लखनऊ की तहजीब, इसका खास वो हर जगह के ऊपर उसका चर्चा करते थे, जिक्र करते थे, और आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आपकी गुफ्तगू से सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन आपकी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मोहब्बत वो एक तरफ है। इस दो होने के बावजूद भी आप अंजुमन की रहनुमाई फरमाते हैं, उसके नायब हैं। इसी सूरत से आपके जो वालिद साहब थे वो साहिब बयाज भी थे, शायर भी थे, और बेहतरीन मुखला में थे, और लखनऊ की तहजीब का मुरब्बा था। हम परवरदिगार आलम की बात करके दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आपके वालिद के दर्जात को मज़ीद परवरदिगार आलम बुलंद करे और आपको और मज़ीद कौम मिल्लत इंसानियत की खिदमत करने का मौका दे। बड़ा इस्लाम की इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलवात। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उन अफराद को यहाँ पर इनामात से नवाजा जाएगा जो क्लास में खिदमत एज अ वॉलंटियर अंजाम दे रहे थे, जिसमें पहला नाम है खालिद यूनुस अब्बास। खालिद यूनुस अब्बास, मैं गुजारिश गुजार हूँ जब इस्लाम के नाम मौलाना साहब से प्रोसेस मोहम्मद रजा, अल्ताफ आलम, सबका नाम आएगा लेकिन सरदार धीरे बोल रहे तो उनका नाम नहीं आएगा। कासिम हुसैन, बच्चे आते हैं, सभी वॉलंटियर से गुजारिश है कि वो आमादा हो रहे हैं, सभी वॉलंटियर से। सैयद हैदर अली जैदी, बहुत शुक्रगुजार वाले जनाब मौलाना साहब का कि वो आए और उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से बच्चों को हौसला अफजाई की। अब मैं गुजार इस्लाम मुस्लिम जनाब मौलाना फिरोज अली बनारसी साहब से जो स्टेज पर तशरीफ ले रहे हैं, जनाब फिरोज अली बनारसी साहब। बड़े प्रश्न किए दूसरे माशा कौन गलत हुसैन, अयान अब्बास, अयान अब्बास, तस्लीम साहब से कि वो हमारे स्टूडेंट डायरेक्टर्स को अपने नामाज सबक से सबक फातिमा, शहमी, बच्चे वॉलंटियर्स हैं, गर्ल्स वो आगे आ जाए। जल्दी जल्दी आए बेटा, जल्दी जल्दी।
वॉलंटियर जल्दी आगे आ जाए। यास्मीन, अरहमा, यास्मीन फातिमा मुफ्ती बुलंदर सलवार। आप उस साइड होइए, उस साइड होइए, उस साइड होइए। सही से लेगी क्या? रशिया रिजवी। हाँ वो बोल रही बेटा, इधर बेटा, इधर। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ और हेड ऑफ द वॉलंटियर जनाब शेख चौनवी साहब से डाइस पर तशरीफ ले हैं। जनाब शेख चौनवी साहब। हमारे मालिक जनाब हुनैनी रज़वी साहब। जैसा कि आप 500 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स ने अपने सेंटर्स पे एग्जाम दिए थे, कुछ स्टूडेंट ने MH हॉल अगर एग्जाम दिया था। जिन स्टूडेंट ने MH हॉल अगर एग्जाम दिया, आज उनका यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है और इस रिजल्ट में हमारे यहाँ जो टॉप लिस्ट गई है वो 76 गई है। 76 हाईएस्ट मार्क्स गया है जिनको यहाँ पर लिया जा रहा है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पास की कैटेगरी में रखा गया है। 76 से नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पास की कैटेगरी में रखा गया है। इंशाल्लाह उनको बाहर वॉलंटियर्स उनको इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजेंगे और उनको भी इनाम जब सभी को मिलेगा तो वो जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उन सभी बच्चों को यहाँ से इदारे की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। जिन बच्चों को इनाम दिया जाएगा यहाँ पर स्टेज पर, उसमें हमारे पास जो लिस्ट है उसमें 21 स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनाम दिए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट इनाम यहाँ पर लैपटॉप रखा गया है, सेकेंड इनाम यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटी है और थर्ड इनाम यहाँ पर फ्रिज है। ये 3 बड़े इनाम जो यहाँ पर टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर आज इनाम से नवाजा जाएगा, जिसमें पहला नाम अभी जो लिया जा रहा है जो 21 रैंक जिनकी है उसमें इकरा नकवी डॉक्टर ऑफ इशरत हुसैन। इस सलमान में जब हम इसी कॉलेज में दूसरा नाम है जोहा बतौर रिजवी मुफ्तीगंज सेंटर से हैं। जोहा बतौर रिजवी, फादर नेम है जनाब शरीफ हैदर। शबाना फातिमा डॉक्टर ऑफ गुलाम अब्बास मुफ्तीगंज सेंटर से। शबाना डॉक्टर ऑफ गुलाम अब्बास, अगर है तो हाथ उठाएं। डॉक्टर ऑफ कायम मेहदी। सैयद किसा फातिमा डॉक्टर ऑफ कायम मेहदी। MH हॉल से फातिमा राशिद रिजवी MH हॉल से डॉक्टर ऑफ अली राशिद रिजवी। बुलंदर सलवार हॉल से हिना फरमीन, फादर नेम नजर अब्बास। अलीना अब्बास डॉक्टर ऑफ सफर अब्बास। मुफ्तीगंज सेंटर से कनीज फातिमा मुफ्तीगंज सेंटर से कनीज फातिमा। आगे उनका नाम ले सकते हैं। कनीज फातिमा मुफ्तीगंज सेंटर से कनीज फातिमा। शीश महल सेंटर से अनंता इज़मी रईस अली रिजवी डॉक्टर ऑफ रईस अली रिजवी। फिज़ा काज़मी डॉक्टर ऑफ कामिल हुसैन MH हॉल। ज़हीन फातिमा MH हॉल से ज़हीन फातिमा डॉक्टर ऑफ रईस बहादुर। फातिमा डॉक्टर ऑफ सफर अब्बास MH हॉल से। बुले जहरा डॉक्टर ऑफ ताजदार हुसैन
बुनिया जहरा डॉक्टर ऑफ ताजदार हुसैन, फातिमा आबदुल डॉक्टर ऑफ अली मुस्तफा वजीरगंज सेंटर से, वाहिदा डॉक्टर ऑफ ज़ीशान हुसैन वजीरगंज सेंटर से, अली जैदी साहब चेयरमैन शेख सेंटर वेलफेयर से तो अपने नस्ल मुबारक से बच्चों को नमाज से नवाज दें। मिसबा जहरा और मसूद हुसैन शीश महल सेंटर से, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलीसा रिजवी डॉक्टर ऑफ वजीर हुसैन वजीरगंज सेंटर से, अब हमारे पास है जिनका यहाँ पे अनाउंसमेंट होना है, उससे पहले मैं गुजारिश गुजार जनाब शेख उमैर अली साहब से कि वो आए और यहाँ पर एक मौजूद है। हुसैन बाट रही है निजात ले जाओ, हुसैन बाट रही है निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के वज़े कायनात में जाओ, हुसैन बाट रही है निजात ले जाओ, ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है, एक बला है, ये मोजिज़े नुमा की बस्ती है, कफन में से गिर पे तो हयात ले जाओ, हुसैन बाट रही है निजात ले जाओ, नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ारे सहर, नहीं करूँगा लहद में मैं इंतज़ारे सहर, फरिश्तों के वो भला रातों रात ले जाओ, फरिश्तों के वो भला रातों रात ले जाओ, कहेंगे मातमी हलकों से लोग कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में हमें हुसैन
निजात ले जाओ। नारे सलाम। अल्लाह इस प्रोग्राम में जितने उलमाए कराम तशरीफ ले आए उन सभी के बहुत बहुत शुक्रिया के दस्त मुबारक से की जाएगी। मैं गुजारिश गुजार हूँ इस्लाम मुस्लिमीन अलैहि मौलाना दारुल मुस्तफी साहब से कि वो डायरेक्ट तशरीफ ले आए। इदारे की तरफ से सभी मेहमान का गुलदस्ती से प्रोग्राम किया जा रहा है। की अलामत है। आप लोग अगर सलवात अगर बेहतर अंदाज में भेजेंगे तो उसकी खुशबू बहुत उत्तम है। एक सलवात अली जनाब मौलाना मसहर इमाम साहब के एक सलवात भेजे मोहम्मद अली जनाब मौलाना मसहर साहब मौलाना मसहर एक सलवात भेजे मोहम्मद एहसास साहब से मौलाना एहसास साहब से गुजारिश है कि तशरीफ आपने तहसीन की जो मस्जिद है वहाँ के ऊपर लगा है, वहाँ के ऊपर क्लासेस को ऑर्गेनाइज किया था और कि उसके अंदर भी दुरुस्त को मतलब करने की याद करता हूँ। आपकी सलामती के लिए बुलंदतर सलवात एक सलवात है मोहम्मद मौलाना साहब प्लीज। मौलाना ने यहाँ पर दुरुस्त दिए और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कुरान के ऊपर आपका अजीम कारनामा है। कंप्यूटर से अगर कोई सीखे तो एक महीने में अगर उसने सही से ट्रेनिंग कर ली तो कुरान पढ़ने में लगेगा, मीनिंग भी निकाल सकता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले जनाब सारी मेहंदी साहब से जनाब सारी मेहंदी साहब और ये एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले जनाब जीवन नवाब साहब से गुजारिश है कि सलवात भेजे मोहम्मद वाले के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। आखिरी में से पढ़े जाएंगे उसके बाद तीनों स्टूडेंट्स का ऐलान किया जाएगा। मैं गुजारिश जनाब शहीद जौन अली साहब से कि वो तशरीफ ले जनाब शहीद जौन अली साहब जब इमाम आएंगे ज़ख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे बामुदर सजाएंगे जब इमाम आएंगे जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। ये ज़ख्म है अभी ताज़ा मक्का और मदीना के शाम को फकर वो बला हम बुला नहीं सकते गैर से नहीं पहुँचे जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से एक एक झुकाएंगे एक एक झुकाएंगे जब आएंगे। ये शक है जिनको अल्लाह के अदले और अदालत पर मंज़िल नबूवत पर सैयदा की इस्मत पर मुर्तज़ा की अहमद से मुत्तसिल नियामत पर जिनको शक है
मार खाएंगे जब मारेंगे। नाम पर सहाबा के काम कामिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम फासिकों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुनकिरों जैसे, नाम पर सहाबा के काम मुशरिकों जैसे, सभी मुँह चुराएंगे, सभी मुँह चुराएंगे जब मारेंगे। दावरे मोहब्बत जो सुबह शाम करते हैं, उनके दुश्मनों से भी राम रस भी रखते हैं, उनसे भी नहीं देते, गीबतें भी करते हैं, मोमिनों से भी दिल में बुग़्ज़ कीन रखते हैं। किस तरह निभाएंगे, किस तरह निभाएंगे जब मारेंगे। अल्लाह जो कहते हैं आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या, सिमट जाब को कुल यही है सरमाया, हम दोनों को सो सलाम और मनफबत नौहा, हम यही सुनाएंगे, हम यही सुनाएंगे जब मारेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु कि 2 मिनट के लिए स्टेज पर अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो आखिरी कुछ इनामात रह गए हैं वो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर और बाहमी तौर से हौसला अफजाई करेंगे। लिहाजा आप तमाम उलमा से अलीगढ़ रिजवी इनके नामात में कुछ मुस्लिम हुए थे, बराए मेहरबानी गुजारिश है तशरीफ हुए हैं। कनीज़ सुगरा, मिसबा ज़हरा, वाहिदा, अलीगढ़ रिजवी। चौकीपुरा और आगरे की सैरत कराई जाएगी। तो 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको बुलाया गया यहाँ पर, इनको चौकीपुरा और आगरे की सैरत कराई जाएगी, जिसमें एक स्टूडेंट का नाम है वाहिदा और कनीज़ सुगरा और अलीगढ़ रिजवी। ये वो स्टूडेंट्स और लोग हैं क्या? जो हमारे 3rd रैंक के स्टूडेंट हैं जिनका नाम बुलाया जा रहा है यहाँ पर, 3rd रैंक के स्टूडेंट वसिया रिजवी, डॉटर ऑफ बहादुर अली, वसिया रिजवी डॉटर ऑफ बहादुर अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलंदरी सलावत। अब जिनका इनाम रखा है इदारे ने, वो था इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी का। इदारे ने आपसी सहमति और मीटिंग में ये तय पाया कि ये स्कूटी अभी खरीदी नहीं गई है, जो कि कल खरीदी जाएगी उनकी इजाजत के बाद। अगर वो चाहें तो इदारा उनको ईरान का आने जाने का टिकट देगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना होगा, या तो वो ईरान इराक का टिकट ले लें या इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लें। इसलिए इदारे ने उनकी स्कूटी नहीं मंगाई है, उनको यहाँ पर इनामात से नवाजा जा रहा है और उनको यहाँ पर ये इनाम पेश किया जाएगा। और ईरान की ज़ियारत इन दोनों को ऑपरेशनल, यानी आप
और वो न रखिए कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, ये बहुत मुनासिब नहीं है। पर डायरेक्ट कोई अगर शिया है तो ईरान की ज़ियारत को कबूल करेगा, क्योंकि दोनों की कीमत में मुमकिन है ईरान की ज़ियारत ज़्यादा हो। लिहाजा ईरान की ज़ियारत, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जाके जहाँ गुंजाइश नहीं है। सबको ये मशवरा सैयदा रजा, डॉटर ऑफ मोहम्मद रजा, सैयदा रजा, वजीरगंज सेंटर से सैयदा रजा। एक सलवार बेटे मोहम्मद उनका भी नाम आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर बुलाया जाएगा और इस इनाम के अनाउंसमेंट के बाद जाएगा। अब उस स्टूडेंट का नाम बुलाया जा रहा है जिन्होंने टॉप किया है ऑल स्टूडेंट्स में, रुबीना रिजवी, रुबीना रिजवी, डॉटर ऑफ आदिल हुसैन। ये सलवार बेटे मोहम्मद और क्लास पढ़ाते हुए आपकी सलामती के लिए बुलंदतर सलवार मौलाना वसीम साहब सरफराजगंज सेंटर। हमारे दोस्त आपने सरफराजगंज में चलाए और आपने उनके अंदर भी इदारे की क्लास हमारी लेबर के अंदर आप सब कहते थे, आप ही उसको संभालते थे। आपकी सलामती के लिए बुलंदतर सलवार। मौलाना गुलरेज मेहदी साहब, मौलाना गुलरेज मेहदी साहब, मौलाना गुलरेज मेहदी साहब हमारे कभी हमेशा क्लास दिए, अभी हम लोगों को मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ड्यू है वो उसके अंदर सबक क्लासेस ले लेंगे। मौलाना की सलामती के लिए बुलंदतर सलवार। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। हर नफस हर घड़ी मेरे दिल से यही आ रही है सदा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, पे भला क्यों न दलालत बनता, शेर कालीन का बिस्तर मलजता होता है। हकीकत यही तेरी मर्जी में ही है खुदा की रज़ा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, जगती आँखों से जन्नत में गुजारे कई दिन, उसको क्या हो यकीन जिसने देखा नहीं कभी रोज़ा तेरा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अपनी मशहद से जो पढ़ता हूँ तो मेरे मुँह से सांस लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी है ये सुकून मैं कहीं भी रहूं, दिल वही है मेरा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। कैसे समझेगा ज़माना तेरी नौकर की हदें, तेरे मारूफ ने बांधी
سمندر کی حدیں بڑھتے طوفان کا رخ بدلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امام رضا یا امام رضا میری اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا امام رضا یا امام رضا جیتے جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جلد مشہد نہ بلاؤ کہ تو مر جاؤں گا اے امام غریب تم ہو میرے طبیب جلد کر دو دوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفی کل محافظہ میں گزارش کروں گا آپ ساری شرکت صاحب قبلہ سے کہ آگے دعا ضرور کرائیں آپ تاکہ حج کے احکام پر اور اس کو کس صورت سے حج کو پریکٹیکل روپ میں بنایا جائے اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں ہمارے سعید بھائی کہ جو اس کام کو کرتے ہیں میں کہوں گا جناب کے ہاتھوں سے آگے تشریف اور دوسرا تحفہ اداری تھے ہمارے ساتھ شاعر اہل بیت جناب ثابت بھائی کہ جو شاعری کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں محمد سے آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آگے آ جائیں آپ کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد ایک سلوات بھیجیں بولے جس میں سارے چمن کی بہار ہے سلامتی امام زمان علیہ السلام بلند تر میں اپنی طرف سے ادارے کراچی سے آپ کا بشریت مولانا صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انتہائی مصروفیت کے بعد آپ نے پوری کوشش کی آپ تشریف لائے پروردگار عالم آپ کو تمام علماء اسلام کو سلامت رکھے اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک آواز بلند سلام